اب فیصلہ ہو چکا ہے، خدا کی عدالت مکمل ہو چکی ہے اور ہر شخص کا آخری مقام طے ہو چکا ہے۔ کھربوں لوگ اب 2 گروپس میں تقسیم ہو چکے ہیں، کچھ جنت کے لیے اور کچھ جہنم کے لیے۔ جو لوگ جنت کے دروازے پر انتظار کر رہے ہیں وہ ناقابل بیان حد تک خوش ہیں، جوش و جذبے سے بھرپور وہ اپنے آخری گھر میں داخلے کے منتظر ہیں، اور آخرکار جنت کے دروازے ان کے لیے کھول دیے جاتے ہیں ایک ایک کر کے۔ انہیں اتنا سکون محسوس ہوتا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہ ہوا تھا، جیسے ان کے کاندھوں سے سارا بوجھ اتار دیا گیا۔ پھر اچانک روشنی ظاہر ہوتی ہے جس سے آس پاس کی ہر چیز روشن ہو جاتی ہے اور جنت کے فرشتوں کی آواز سنائی دیتی ہے، سلام ہو آپ پر، اب اس جنت میں ہمیشہ کے لیے رہنے آ جائیے۔ چمکتے چہروں والے مومنین ہمیشہ باقی رہنے والی خوشیوں کی طرف قدم با قدم چلتے ہیں۔ اس لمحے ہر مشکل، ہر آزمائش جو انہوں نے دنیا میں سہی تھی اپنے معنی پا لیتی ہے۔ صبر کا بدلہ اب نہ ختم ہونے والی نعمتوں کی صورت میں مل چکا ہے۔ اب نہ تو کوئی تھکاوٹ ہوگی، نہ موت، اور نہ کوئی آنسو۔ ایک طرف جہاں خوشیاں ہیں تو وہاں دوسری طرف درد اور اذیت سے بھرپور پچھتاوا ہے۔ جہنم اب بھرنا شروع ہو چکی ہے اور غم و اذیت کی ماری چیخیں اس کی گہرائیوں میں گونج رہی ہے۔ تو اصل میں جنت اور جہنم کیسی ہے؟ کیا جنت ہماری دنیا کی طرح دکھتی ہے؟ کیا وہاں بھی گرمی اور سردی، رات اور دن آتے ہیں؟ کیا وہاں ہمیشہ رہنا بور نہیں کر دے گا؟ اور جنت میں جانے والے آخری شخص کا کیا قصہ ہے؟ اس کی حالت کیا ہوگی؟ آئیے ایسی بہت سی چیزوں کا جائزہ لے کر تفصیل سے جانتے ہیں کہ دونوں جانب ہمیں کیا کچھ ملنے والا ہے۔ ایک حدیث قدسی کے مطابق ہمارا رب فرماتا ہے، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ چیزیں تیار کر رکھی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی نے سنی، اور نہ ہی کسی انسان کے دل میں اس کا خیال تک گزرا ہے۔ لہٰذا جنت اس سے کہیں زیادہ بڑی اور کہیں زیادہ خوبصورت ہوگی جو آپ اس ویڈیو میں دیکھیں گے۔ جو ہم آپ کو دکھائیں گے وہ صرف ایک مثال کے لیے ہے تاکہ آپ کو حقیقی چیزوں کا تصور مل سکے، اور ظاہر ہے جہنم کے لیے بھی ایسا ہی ہے۔ ایک طرف رونے چیخنے کی آوازیں ہیں تو دوسری طرف کھلکھلاتی ہوئی مسکراہٹ ہے۔ ظالموں کو اپنے ظلم کا نتیجہ مل جائے گا جبکہ مظلوموں کو ان کے صبر کا بدلہ دیا جائے گا۔ جنت والوں کے لیے اب ساری مشکلیں، تکلیفیں اور ذہنی تناؤ ختم ہو چکا ہے۔ نہ تو اب تنہائی ہے اور نہ ہی آنسو۔ قرآن میں جنت کو اتنی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے کہ آپ خواہش کریں گے کہ آپ جلد از جلد وہاں پہنچ جائیں، اور اس جنت میں ہر وہ چیز ہوگی جس سے آنکھوں کو لذت حاصل ہوگی، اور اس میں تم ہمیشہ رہو گے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ہمیشہ تندرست رہو گے اور کبھی بیمار نہیں ہوں گے، تم ہمیشہ زندہ رہو گے اور کبھی موت نہیں آئے گی، تم ہمیشہ جوان رہو گے اور کبھی بوڑھے نہیں ہوگے، تم ہمیشہ راحت میں رہو گے اور کبھی محتاج نہیں ہوں گے۔ جنت میں انسان کی عمر ہمیشہ 33 سال رہے گی، جو طاقت اور خوبصورتی کا عروج ہوتا ہے۔ جب میاں بیوی جنت میں ایک ساتھ داخل ہوں گے تو ان کی ازدواجی زندگی ہمیشہ خوش و خرم رہے گی، اور اس دنیا میں جن کی شادی نہیں ہوئی ہوگی وہ جس سے چاہیں گے شادی کر سکیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا ذکر ان الفاظ میں فرمایا ہے، جنت کی ایک اینٹ سونے کی اور ایک چاندی کی، اس کی کنکڑیاں ہیرے جواہرات اور یاقوت ہیں، اور اس کی مٹی زعفران ہے۔ جو اس میں داخل ہوگا ہمیشہ خوش رہے گا اور بدحال نہیں ہوگا، وہاں ہمیشہ رہے گا اور فوت بھی نہیں ہوگا۔ اس کے کپڑے کبھی بوسیدہ نہیں ہوں گے اور اس کی جوانی ہمیشہ قائم رہے گی۔ اور ایک بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ فطرت کے قوانین اور اس دنیا کے سباب اور اثر کے رشتے وہاں لاگو نہیں ہوں گے، یعنی جو آپ چاہیں گے وہ فوراً ہو جائے گا۔ پھل کھانے کے لیے آپ کو بیج بو کر انتظار کرنا یا کہیں جا کر لانا نہیں پڑے گا، کیونکہ جنت میں کسی عمل یا مرحلے سے گزرنا نہیں ہوگا۔ جو آپ چاہیں گے اللہ اسے براہ راست پیدا فرما دے گا۔ جب آپ کسی درخت سے پھل توڑیں گے تو فوراً اس کی جگہ دوسرا پھل پیدا ہو جائے گا۔ درخت سے کچھ بھی کم نہیں ہوگا۔ جو گوشت کھانے کا دل چاہے گا وہ پکا پکایا آپ کے سامنے فوراً آ جائے گا۔ میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، آپ نے اپنی پیدائش کے بعد سے اب تک کتنی قسم کے کھانے کھائے ہیں؟ اس زندگی میں ہم پوری دنیا کے ذائقوں کا ایک چھوٹا سا حصہ ہی چکھ سکتے ہیں، اور یہ چھوٹا سا حصہ بھی ہمیں انتہائی لذت انگیز لگتا ہے۔ گویا ہم اپنی پوری زندگی سمندر سے ایک گلاس پانی بھر کر گزار لیتے ہیں اور پھر بھی خوش رہتے ہیں۔ مثال کے طور پر ٹماٹر کا اپنا ذائقہ ہے، انڈے کا اپنا ذائقہ ہے اور مرچ کا اپنا ذائقہ ہے، لیکن جب ان کو مکس کر دیں تو آپ کو ایک نیا ذائقہ ملتا ہے۔
अब तक शायद हमने दुनिया के खानों का 1% भी नहीं चखा और जन्नत के जायकों के मुकाबले में ये उसका 10 लाखवां हिस्सा भी नहीं है। एक और नेमत का जिक्र करते हैं। जन्नत में हमारे दिलों में कोई नफरत, गुस्सा या हसद नहीं होगा। तमाम मनफी और तकलीफ दे एहसासात हमसे दूर कर दिए जाएंगे। हर कोई भाइयों और बहनों की तरह खुशी खुशी रहेगा। अल्लाह इसे कुरान में यूं बयान फरमाता है, उनके सीनों में जो कुछ रंजिश होगी उसे हम निकाल फेंकेंगे। वो भाई भाई बनकर आमने सामने ऊंची निशिस्तों पर बैठे होंगे। और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उनके दिल एक इंसान के दिल की मानिंद हो जाएंगे, जिनमें ना कोई इख्तिलाफ होगा और ना कोई नफरत। अहले जन्नत दोस्तों और भाइयों की तरह इस दुनिया में अपनी यादों के बारे में बातें करेंगे। वो अपने गुजरे और देखे हुए लम्हात को दोबारा देखेंगे, जैसा कि पर्दे पर कोई मूवी चल रही हो। वो तारीख के दिलचस्प तरीन वाकयात के मनाजिर देख सकेंगे, बल्कि वहां जा भी सकेंगे। अब जन्नत की मजीद खूबसूरतियों की बात करते हैं। वहां साफ शफाफ पानी की नहरें, दूध की नहरें, शहद की नहरें और हमारे तसव्वुर से भी बाहर दीगर बहुत सी नहरें होंगी। कुरान में अल्लाह फरमाता है, वो जन्नत जिसका मोमिन लोगों से वादा किया गया है, उसका हाल ये है कि उसके नीचे नहरें बहती हैं, उसका फल भी सदाबहार है और उसकी छांव भी। उसमें ऐसे पानी की नहरें हैं जो खराब होने वाली नहीं, ऐसे दूध की नहरें हैं जिनका जायका नहीं बदलेगा, ऐसी शराब की नहरें हैं जो सरापा लज्जत होगी, और ऐसे शहद की नहरें हैं जो निथरा हुआ होगा। और उन जन्नतियों के लिए वहां हर किस्म के फल होंगे और उनके परवरदिगार की तरफ से मगफिरत। लेकिन यहाँ बयान की गई शराब इस दुनिया की शराब से बिल्कुल मुख्तलिफ होगी। इसमें जन्नत की खुशूसियात होंगी। ये पाकीज़ा मशरूब होंगे जो सुरूर और राहत पैदा करेंगे। इनसे किसी को नशा नहीं चढ़ेगा। इन तमाम फितरी खूबसूरतियों के अलावा जन्नत की आबो हवा भी बिल्कुल मुतादिल होगी। इस दुनिया के बरक्स वहाँ ना तो गर्मी होगी और ना सर्दी, बल्कि आबो हवा जो हमें सबसे ज्यादा भाती है। और जन्नत में रात भी कभी नहीं होगी। वहाँ हमेशा ऐसी रोशनी रहेगी जो दिलों को खुशी से भर देगी। और जन्नत में नींद नहीं होगी। इस दुनिया में नींद इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि ये थकावट दूर करती है, लेकिन जन्नत में किसी किस्म की कोई थकावट नहीं होगी। वहाँ कोई थकान उनके पास भी नहीं आएगी। इस दुनिया में दिलचस्प तरीन चीजें करते हुए भी कुछ वक्त के बाद हम बोर हो जाते हैं। तो क्या जन्नत में भी ऐसा होगा? बिल्कुल नहीं। अल्लाह जिसने बोरियत को पैदा किया है वो ये यकीनी बना सकता है कि आप वहां कभी बोरियत महसूस न करें। तो जन्नत खुशियों से भरपूर एक हमेशा का घर होगा, जहां हर तरह के राहत का सामान होगा और कोई मोहताजी नहीं होगी, और उसमें दाखिल होने वाला हमेशा रहेंगे। कुरान और हदीस से हमें पता चलता है कि जन्नत के 8 दरवाजे हैं। लोग अपने अपने अमाल के मुताबिक इन दरवाजों से दाखिल होंगे। उनमें बाबा सलाह, नमाज का दरवाजा, बाबल जिहाद, जिहाद का दरवाजा, बाबा सदका, सदका खैरात का दरवाजा, बाबर रैयान, रोजेदारों का दरवाजा, बाबुल हज, हज का दरवाजा, बाबुल काजिमीन अलगैज वल आफिना अन्नास, माफी का दरवाजा, बाबुल ईमान, ईमान का दरवाजा, और बाबू जिक्र, जिक्र का दरवाजा शामिल है। और मोमिनीन अपने मर्तबे और अल्लाह के साथ अपने ताल्लुक के लिहाज से जन्नत के 7 दर्जों में से किसी एक में होंगे। ये 7 दर्जे अल-फिरदौस, अदन, नईम, दर्दुल खुल्द, अल-मावा, दारुस्सलाम और इल्लियून है। लिहाजा अगर जन्नत के मर्तबे और दर्जे मुख्तलिफ हैं तो सबसे ऊंचे दर्जे में मौजूद शख्स सबसे नीचे दर्जे में मौजूद शख्स के साथ कैसा होगा। बदुई ज़मान नुरसी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस के जरिए इसकी वजाहत बड़ी खूबसूरती से की है। हदीस के मुताबिक आप उन्हीं के साथ होंगे जिनसे आप मोहब्बत करते हैं। मिसाल के तौर पर फर्ज करें कि मेरी जायके की हिस्स बहुत ताकतवर है और आपकी बहुत कमजोर है। हम एक खूबसूरत जगह पर एक ही दस्तरख्वान पर बैठे हैं। मेरी नजर भी बहुत तेज है, मैं दूर तक देख सकता हूँ, लेकिन आप इतनी दूर नहीं देख सकते। अगर हम साथ बैठकर गपशप करते हुए खाना खाएं तो कौन ज्यादा लुत्फ उठाएगा? जाहिर है कि मैं, क्योंकि मेरी नजर ज्यादा तेज है और मेरी जायके की हिस्स भी ज्यादा ताकतवर है। इसी तरह अगर हम जन्नत में अपने दोस्तों के साथ एक ही दस्तरखान पर बैठे हों और एक ही खाना खा रहे हों, फिर भी हमें हासिल होने वाला मजा मुख्तलिफ होगा, लेकिन कोई भी इसकी शिकायत नहीं करेगा। हर कोई खुद को मिलने वाली नेमत पर मुकम्मल खुश होगा। कोई भी ऊंचा दर्जा ना मिलने पर अफसुर्दा नहीं होगा, क्योंकि हर मनफी या तकलीफ दे एहसास उनके दिलों से दूर कर दिया जाएगा। और जन्नत में लोग किस तरह के लिबास पहनेंगे? कुरान हमें बताता है कि जन्नत के लिबास रेशम का बना हुआ होगा।
और बहुत खूबसूरत होगा। उनके ऊपर बारीक रेशम का सब्ज लिबास और इस्तबरक एक किस्म का मोटा रेशम के कपड़े होंगे। वहां उनके सोने के गहनों और मोतियों से आरास्ता किया जाएगा। और जन्नत में हमारी खुशबू कैसी होगी? हमारी शक्ल सूरत ऐसी ही होगी जैसी दुनिया में थी। जन्नत में अल्लाह हर शख्स को ऐसी मुकम्मल खूबसूरती और सूरत व शाबा अता करेगा जो उसे सबसे ज्यादा पसंद होगी। और ये खूबसूरती सिर्फ एक शक्ल में महदूद नहीं होगी। अल्लाह अपने बंदों को इजाजत देगा कि वो जब चाहे सूरत व शबा इख्तियार कर सकते हैं। लिहाजा अहले जन्नत अपनी पसंद के मुताबिक मुख्तलिफ अंदाज की खूबसूरती के हामिल होंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक जन्नत में एक बाजार है जहां मर्दों और औरतों की शबाहतों के अलावा और किसी चीज की खरीदो फरोख्त नहीं होगी। तो जिस शख्स को भी कोई सूरत पसंद आएगी वो उस सूरत का हामिल हो जाएगा। तो क्या आपने दाखिल होने वाले आखिरी जन्नती के बारे में सुना है? हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं उस शख्स को जानता हूं जो सबसे आखिर में दोजख से निकलेगा और सबसे आखिर में जन्नत में दाखिल होगा। वो दोजख से निकलेगा तो पीठ के बल रेंगता हुआ निकलेगा और अल्लाह उससे फरमाएगा, जाओ जन्नत में दाखिल हो जाओ। वो जन्नत में आएगा लेकिन उसको ख्याल आएगा कि वो तो भरी हुई है। चुनांचे वो लौट कर आएगा और कहेगा, ऐ मेरे रब, मैंने उसको भरा हुआ पाया। अल्लाह दोबारा फरमाएगा, जा और जन्नत में दाखिल हो जा, तेरे लिए उसमें दुनिया के बराबर और उसके 10 गुना बराबर है। वो शख्स हैरत से कहेगा, तो तू कायनात का बादशाह है, क्या मुझसे मजाक कर रहा है या मुझसे हंसी कर रहा है? इसको बयान करने वाले सहाबी अब्दुल्ला इब्ने मसूद रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, ये कहते हुए मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है कि आप हंसे, यहाँ तक कि आप इतना हंसे कि आपके मुबारक दांत जाहिर हो गए। ये कहा जाता है कि वो जन्नत वालों में से सबसे कमतर दर्जे में होगा। और अब एक बड़ा सवाल, क्या हम जन्नत में अल्लाह को देख पाएंगे? जी हाँ, इंशाअल्लाह। हमारी सबसे बड़ी खुशी अल्लाह को देखना और ये जानना है कि वो हमसे खुश है। कुरान इस नेमत का जिक्र इस तरह करता है, उस दिन बहुत से चेहरे शादाब होंगे, अपने परवरदिगार की तरफ देख रहे होंगे। ये जन्नत में सबसे बड़ा इनाम होगा। बदुई ज़माम नुरसी रहमतुल्लाह अलैह ने एक और तफसील बयान की है, जिस कुरानी तशरीह में वो फरमाते हैं, जमीन पर 1000 सालों की खुशबाश जिंदगी जन्नत में गुजरे हुए 1 घंटे के बराबर भी नहीं है। और जन्नत में गुजरे हुए 1000 साल अल्लाह को देखने के लिए 1 घंटे के बराबर भी नहीं है। इसका मुकाबला अपनी मौजूदा जिंदगी से मत करें, बल्कि ऐसी जिंदगी का तस्वुर करें जो शुरू से आखिर तक किसी एक भी मुश्किल के बगैर खुशियों से भरी हुई हो। ऐसी जिंदगी के 1000 साल भी किसके बराबर नहीं है जन्नत में 1 घंटे के। और जन्नत में 1000 सालों का तस्वुर करें, जहां तस्वुर से भी बढ़कर नेमतें होंगी, लेकिन वो अल्लाह को देखने के 1 घंटे के बराबर भी नहीं है। मोमिन जब अपने रब की खूबसूरती देखेंगे तो उन पर सहर तारी हो जाएगी और वो अपनी शुक्रगुजारी का इजहार इन अल्फाज से करेंगे, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। और एक हैरत अंगेज बात यह है कि जन्नत वाले जहन्नुम वालों को देखेंगे और जहन्नम वाले जन्नत वालों को देखेंगे। एक तरफ वालों का पछतावा कई गुना बढ़ जाएगा, जबकि दूसरी तरफ वालों की शुक्रगुजारी कई गुना बढ़ जाएगी। तो जब जन्नत वाले ऐसी ना खत्म होने वाली खुशियों में होंगे तो जहन्नम वालों की क्या कैफियत होगी? जहन्नम जिसे हजारों सालों से बांधा हुआ है, गैज़ो गजब से उबल रही है। बहुत से जालिम जिन्होंने मासूमों के साथ ज्यादती की, सैकड़ों बच्चे कत्ल किए और बेशुमार लोगों के हुकूक जाया किए, वो अब यहाँ कैद है। उसके अंदर बहुत अंधेरा है, यहाँ तकलीफ और पछतावे से भरपूर मंजर है। लोगों की चीखों और आहों की गूंज है। जो कोई कयामत की घड़ी को झुठलाए उसके लिए हमने भड़कती हुई आग तैयार कर रखी है। जब वो इनको दूर से देखेंगे तो ये लोग उसके बिफड़ने और फुकरने की आवाज सुनेंगे, और जब इनको अच्छी तरह बांध कर उसकी एक तंग जगह में फेंका जाएगा तो वहां ये मौत को आवाज देकर पुकारेंगे। उस वक्त इनसे कहा जाएगा कि आज तुम मौत को सिर्फ एक बार ना पुकारो, बल्कि बार बार मौत को पुकारते ही रहो। इस कदर खौफनाक जहन्नम का होना इंसाफ को पूरा करने के लिए जरूरी है, और इंसाफ मजलूमों के लिए रहमत होता है। अल्लाह ताला फरमाता है, और हमने उन पर कोई जुल्म नहीं किया, बल्कि वो खुद ही अपनी जानों पर जुल्म ढाते हैं। ईमान वालों के लिए दोजख एक अर्जी जगह होगी। अगर उन्होंने बड़े गुनाह किए लेकिन उनसे तौबा नहीं की, और अगर उनके गुनाह उनकी नेकियों से बढ़ गए और कोई सिफारिश उनके काम न आई,
तो वो कुछ मुद्दत तक जहन्नुम की आग में रहेंगे। जाहिर है अगर अल्लाह ने माफ फरमा दिया तो उन्हें जहन्नुम में नहीं डाला जाएगा, लेकिन अगर मोमिन जहन्नुम में गया तब भी उसकी सजा पूरी होते ही वो उससे बाहर आकर जन्नत में दाखिल हो जाएगा। जहन्नम की सजा देने वाले फरिश्ते अपनी जिम्मेदारियां निभाने में बहुत सख्त और बेरहम है। उनकी खौफनाक सूरत ही जहन्नम वालों के अजाब के लिए काफी है। कुरान में काफिरों और जहन्नम के दरोगा फरिश्ते के दरमियान होने वाली बातचीत को यूं बयान किया गया है। वो पुकार कर कहेंगे, ए मलिक, तुम्हारा परवरदिगार हमारा काम ही तमाम कर दे। वो कहेगा, तुम्हें इसी हालत में रहना है और हकीकत ये है कि हम तुम्हारे पास हक बात लेकर आए थे, लेकिन तुम में से अक्सर लोग हक बात ही को बुरा समझते हैं। मगर वहां सिर्फ आग का अजाब ही नहीं होगा, जहन्नुमी शख्स और भी महरूमियों का शिकार होगा, जैसे कि जन्नत की नेमतों से महरूमी, तन्हाई, खामोशी, शैतान के साथ जलाया जाना, जला देने वाली आग की अजियत और जला देने वाली ठंडक की अजियत, अल्लाह का नाशुक्रा करार पाना और उससे बात ना करने की अजियत, यानी वो शख्स वहां कई तरह की सजाएं झेल रहा होगा। उस दिन अल्लाह जहन्नमियों से फरमाएगा, मुझसे बात मत करो। कितना दर्दनाक मंजर है। अपने रब से उनका राबता बिल्कुल खत्म हो जाएगा। जहन्नुमियों के हाथ जंजीरों में बंधे होंगे और शोले उनके पूरे जिस्म पर लपटे होंगे। उनकी आंखें खौफ के मारे उबल रही होंगी। उनकी हर सांस में जहन्नम की झुलास देने वाली आग बसी होगी। वो भाग निकलने और खुद को बचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं कर सकेंगे क्योंकि वहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं होगा। उनके सरों पर उबलता हुआ पानी डाला जाएगा जो उनकी चमड़ी को पिघला और अंदर से जला देगा। कुरान इसे यूं बयान करता है, और तुम्हें क्या पता कि सकर दोज़ख क्या चीज है। वो ना किसी को बाकी रखेगी और ना छोड़ेगी। वो खालों को झुलास देने वाली चीज है। उनका खाना ज़क्कूम होगा जो जहन्नुम में उगने वाला एक कांटेदार दरख्त है, और उनका मशरूब खौलता हुआ पानी और पीप होगा। जब भी वो इसे पिएंगे तो अजाब उन्हें अपनी हड्डियों में उतरता महसूस होगा। उसके आगे जहन्नुम है और वहां उसे पीप का पानी पिलाया जाएगा। वो उसे घूंट घूंट कर पिएगा। मौत उस पर हर तरफ से आ रही होगी, लेकिन वो मरेगा नहीं, और उसके आगे हमेशा एक और सख्त अजाब मौजूद होगा। एक और आयत में अल्लाह फरमाता है, उनके लिए एक कांटेदार झाड़ के सिवा कोई खाना नहीं होगा जो ना जिस्म का वजन बढ़ाएगा और ना भूख मिटाएगा। जब भी वो चीखेगा कि मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो सजा और भी ज्यादा सख्त हो जाएगी। उनकी वाहिद उम्मीद सिर्फ ये होगी कि वो मर जाएं, खत्म हो जाएं, उनका वजूद ही बाकी ना रहे, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। क्या ये वही लोग नहीं थे जिन्होंने इस दुनिया में मासूमों पर बॉम्ब बरसाए, उनकी आंसुओं की जरा भी लाज रखे बगैर उन्हें अजियत देते रहे? क्या वो मायूसी से रोती हुई माँ को देखकर हंसा नहीं करते थे? हाय, काश मैं उस वक्त समझ जाता, काश मुझे सिर्फ एक और मौका मिल जाता। उनकी चीखें अंधेरे में गूंजती रहेगी, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकलेगा। इस दुनिया की आजमाइश खत्म हो चुकी है और अब वो अपने अमाल का बदला चख रहे हैं। और उस दिन जहन्नुम की आग में जलते हुए गिरोह एक दूसरे से बहस भी करेंगे। वो एक दूसरे पर इल्जाम धरेंगे और लानत मलामत करेंगे। कुरान में इसे यूं बयान किया गया है, अल्लाह फरमाएगा कि जाओ, जिन्नात और इंसानों के उन गिरोहों के साथ तुम भी दोज़ख में दाखिल हो जाओ जो तुमसे पहले गुजर चुके। इस तरह जब भी कोई गिरोह दोज़ख में दाखिल होगा तो वो अपने जैसों पर लानत भेजेगा। जब सब उसमें इकट्ठा हो जाएंगे तो उनमें से जो लोग बाद में आए थे वो अपने से पहले आने वालों के बारे में कहेंगे, ऐ मेरे रब, इन्होंने हमें गलत रास्ते पर डाला, इसलिए इनको आग का दुगना अजाब देना। अल्लाह फरमाएगा, सभी का अजाब दुगना है, लेकिन तुम्हें अभी पता नहीं है। और पहले आने वाले बाद में आने वालों से कहेंगे, तो फिर तुमको हम पर कोई फौकियत तो हासिल ना हुई, लिहाजा जो कमाई तुम खुद करते रहे हो उसके बदले अजाब का मजा चखो। कुछ जहन्नुमी शैतान को भी इल्जाम देंगे और शैतान उन्हें इस तरह जवाब देगा, अल्लाह ने तुमसे सच्चा वादा किया और मैंने भी तुमसे वादा किया तो उसकी खिलाफ वर्जी की, और मुझे तुम पर इससे ज्यादा कोई इख्तियार हासिल ना था कि मैंने तुम्हें अल्लाह की नाफरमानी की दावत दी तो तुमने बात मान ली। अब मुझे मलामत ना करो, अपने आप को मलामत करो। ना मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ और ना तुम मेरी मदद कर सकते हो। तुमने इससे पहले मुझे अल्लाह का जो शरीक मान लिया था, आज मैंने उससे इनकार कर दिया है।
आखिरकार जालिमों को वही कुछ मिलेगा जिसके वो हकदार हैं और मजलूमों को वो मिल जाएगा जिसके वो हकदार हैं। हम में से कोई नहीं जानता कि हमें मौत कब आएगी, लेकिन इस पूरे वीडियो में हमने जो बातें की है वो जरूर होकर रहेगी। मौत का फरिश्ता आपको देख रहा है, कब्र आपका इंतजार कर रही है। आपका हिसाब आसान नहीं होगा। एक तरफ जन्नत है और दूसरी तरफ जहन्नुम। और अगर आप भी ये वीडियो देख रहे हैं यानी आपकी आजमाइश अभी तक खत्म नहीं हुई, मतलब आपके पास अपने मामलात ठीक करने का मौका है। इस दुनिया की कौन सी खुशी जन्नत की नेमतों के मुकाबले में ज्यादा बड़ी हो सकती है? क्या इस जिंदगी की आर्जी खुशियों के लिए हमेशा की नेमतों को खो देना अक्लमंदी है? कौन सा काम मुश्किल है? उन नमाजों के लिए थोड़ी सी मेहनत जिनमें हम सुस्ती करते हैं, या जहन्नम का अजाब? तौबा करना और रोजाना 5 वक्त की नमाज पढ़ना कितना मुश्किल हो सकता है, जिन्हें अदा करने में आपको 1 घंटा भी नहीं लगता। जब मौत के बाद आने वाले खौफनाक हालात में हर कोई खौफो हरास का शिकार होगा, तो क्या ऐसे में खुशी से मुस्कुराना और हमेशा की जन्नत में जाना सबसे बड़ी कामयाबी नहीं है? हमें इस दुनिया में बेमकसद के बगैर नहीं भेजा गया है। मौत हकीकत है, कब्र भी हकीकत है और कियामत का दिन जरूर आकर रहेगा। हम इन सच्चाइयों से इनकार नहीं कर सकते। हमारे सामने हकायक होने के बाद हम यूं कैसे जी सकते हैं जैसे किसी हकीकत का वजूद ही ना हो? मौत रोजाना 2.5 लाख लोगों का दरवाजा खटखटाती है। क्या अब भी ये सब आपके लिए कुछ नहीं? जाग जाएं इससे पहले कि मौत आपको जगाए, क्योंकि मौत को खुद मौत नहीं आती। अपनी तौबा में देर ना करें। आज आपके पास वक्त है। आपका दिल अभी भी धड़क रहा है। आप अभी भी सजदे में गिर सकते हैं। तौबा का दरवाजा अभी भी आपके लिए खुला है। अगर आप नमाज नहीं पढ़ते तो अभी से नमाज शुरू कर दें। तो आइए कुरान की इस आयत से इख्तिताम करते हैं जो उम्मीद का सबसे बड़ा दरवाजा खोल देती है। कह दो कि ऐ मेरे वो बंदो जिन्होंने अपनी जानों पर ज्यादती कर रखी है, अल्लाह की रहमत से मायूस ना होना। यकीन जानो अल्लाह सारे के सारे गुनाह माफ कर देता है। यकीनन वो बहुत बख्शने वाला है, बड़ा मेहरबान है। या अल्लाह हम सबको अपने गुनाहों की माफी अता फरमा, दिल में सच्ची तौबा पैदा फरमा, जहन्नुम की आग से हमें हमेशा के लिए पनाह दे और जन्नतुल फिरदौस में अपना दीदार नसीब फरमा। ऐ अल्लाह हमारे दिल में जन्नत का इतना शौक पैदा कर दे कि हर सांस, हर कदम, हर दुआ सिर्फ